Hello, Namaskar, good morning. In the last class, we were discussing the various special function registers of 8051. In the last class, we discussed that how the program memory and the data memory they are extended externally in 8051. Then we discuss regarding the program counter of it. Then we discuss the stack pointer of 8051. We discussed 80 accumulator. We discussed the register B. Now today we will start with another special function register which is known as DPTR. DPTR. This DPTR register is also a special function. It is known as data pointer. This register can be considered, or in fact not can be, it is in fact made up of two registers of 8-bit each. One is known as DPL and another is known as DPH. These two combinedly they form the data pointer register, and which is of 16-bit, it is of 8-bit, it is of 8-bit. Actually this register is used to points in the data memory. जैसे प्रोग्राम काउंटर जो है वो पॉइंट करता है टूवर्ड्स द नेक्स्ट instruction in the program memory. The same is here in case of data memory, right? It is a and you can say especially in external memory, when we can interface external data memory, then this register can be used as a memory pointer in that. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए एक कोई वैल्यू है, कोई डाटा है जो कि 66H जो कि डाटा मेमोरी में, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी में स्टोर करना है, जिसकी लोकेशन है 2000. दैट मीन्स एक 2000 मेमोरी लोकेशन जो कि ऑब्वियस एक्सटर्नल होगी क्योंकि इंटरनली तो 128 बाइट ही है, और जिसका एड्रेस 2000 दैट इज एक्सटर्नल. एंड इस लोकेशन पे हमने 66H जो है वो सेव करना है. नाउ दिस एक्सटर्नल मेमोरी में कोई भी डाटा सेव जो करेगा या वहां से एक्सेस करेगा, दैट कैन बी ओनली विद द हेल्प ऑफ DPTR. जैसे मैं कहूँ मूव, इसको मैंने ए में भेज दिया कॉमा 66H, राइट. सिमिलरली मैं कहूँ मूव DPTR कॉमा 2000H, and now I will say move x. ये move x at the rate DPTR. Move x DPTR कॉमा a, राइट. यहाँ पर ध्यान रखना जो ये हेक्स नंबर सिंबल यूज करते हैं 8051, दैट इज कि उसके साथ लिखा हुआ नंबर इमीडिएट नंबर है, और एट द रेट जो है दैट इज यू कैन से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज होगा कि भी ये जो DPTR है ये एड्रेस सेव किए हुए हैं. एट द रेट इज सिग्निफाइज दैट, जैसे 8086 में स्क्वायर ब्रैकेट सिग्निफाइज दैट इट इज ए मेमोरी, हियर this signifies that it is a memory, right? So this way we can transfer the content of A to the DPTR, right? So this DPTR is used as a memory pointer in the external RAM memory, that is program data memory, not in program memory. program memory में कौन यूज करते हैं? program memory में हम यूज करते हैं program counter को, और data memory में external में DPTR. ना इसके अलावा 4 इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, P0, P1, P2, P3. ये जो 4 रजिस्टर है all are of 8-bit. The all 4 register they are of 8-bit. These are known as input output port registers. These are input output port registers, right?
they are bit as well as byte addressable. Bit as well as byte addressable. That means इन रजिस्टर्स की, इंडिविजुअल रजिस्टर्स की, फॉर एग्जाम्पल P0, ये जो P0 रजिस्टर है इसको हम एड्रेस कर सकते हैं एज ए बाइट, एज वेल एज इसको एड्रेस कर सकते हैं एज ए, इसकी इंडिविजुअल बिट्स को भी हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट। जैसे द एड्रेस ऑफ दिस P0 इज 80H, P1 is 90H, P2 is A0H, and P3 is B0H. So these are the address registers. You can say these are the address of these registers. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जितने भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं, इन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स को हम इनके नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और इनकी मेमोरी लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर अब मैं P0 को P0 एज ए रजिस्टर भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसको एज ए मेमोरी लोकेशन 80H के तौर पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, और इसकी सारी बिट्स जो है बिट एड्रेसेबल है। दैट मीन्स P0 जो रजिस्टर है जिसका एड्रेस हमारा 80H है, इसकी मेमोरी जो है 80, 81, 82, 83 अप टू 87 इसकी इंडिविजुअल बिट्स को एड्रेस करेंगे, राइट। ये जो बिट है एक्चुअली दे सिग्निफाइज कि भी इसकी जो आईओ पिंस है, जो 4 पोर्ट है, वे 4 पोर्ट, जैसे P0 की बात कर रहे हैं हम, P0 जो है इसकी 8 बिट है, 8 आईओ पिंस होंगी इसकी पोर्ट की। ये पिंस whether they behave as an input pin or they behave as an output pin, we can select these ports as an input port or we can select these port as an output port and also individual bits of it, right। so जिस बिट को भी मैं 1 बना दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 1 बना दिया, तो इसका मतलब है जो 80 एड्रेस वाली पिन है, that pin will behave as an input pin, right। जनरली अगर मैं इस सभी को 1 कर दूंगा, इसका मतलब ये जो आईओ पोर्ट 8 बिट के पोर्ट की तरह यूज होगा और इसकी ये जो पिन है ये इनपुट पिन की तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये एज एन इनपुट पोर्ट होगा, राइट। सो इन पोर्ट्स की इंडिविजुअल बिट्स को, सभी बिट्स को हम 0 या 1 जो वैल्यू देंगे, उस वैल्यू के बेस पे वो पर्टिकुलर पिन या पिंस वो इनपुट या आउटपुट की तरह बिहेव करेगी। यहां पर आप याद रखिए 1 फॉर इनपुट, कि वो जिस पर 1 कर देंगे वो इनपुट की तरह काम करेंगे, एंड 0 फॉर आउटपुट, राइट। सो दीज 4 पिन पोर्ट आईओ पोर्ट रजिस्टर्स they will use to select whether a particular port will behave as an input port, as an output port। किसी भी पिन को हम इंडिविजुअल पिन लेवल पर हम उसको इनपुट या आउटपुट बना सकते हैं, राइट। नाउ बिफोर गोइंग नेक्स्ट टू स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, they are T mode and TCON, but before going to that we must understand the timer counter register of it, timer counter unit of it। As we see in the block diagram 8051, it has inbuilt timer counter unit in it, and that unit consists of two 16-bit registers, two 16-bit timer counter register। This timer counter register, they are known as T0 and T1, they are known as T0 and T1, दो काउंटर रजिस्टर है, and which can be considered as two 8-bit separate registers, that is TH0 and TL0, similarly TH1 and TL1। So these two 16-bit registers, they can be used as 4 independent 8-bit registers,
राइट। एंड ये जो टाइमर काउंटर रजिस्टर्स है ये काउंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और ये एज टाइमर की भी तरह यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज एज ए काउंटर and they can be used as a timer. What is the difference between a timer and a counter? What is the difference between timer and counter? काउंटर जो है वो हमेशा एक्सटर्नल काउंटर बना किसी चीज को काउंट करना। किस चीज को काउंट करेगा भाई? एक्सटर्नल वर्ल्ड को ही तो काउंट करेगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई चीज होगी उसी को तो काउंट करेगा। दैट मीन्स इट इज बेसिकली काउंट्स external pulses, whereas timer ये हमेशा क्लॉक पल्स को काउंट करता है कि भी इतने टाइम के बाद ये काम होना चाहिए, इतने टाइम के बाद ये सिग्नल जनरेट होना चाहिए। तो वो टाइम कौन बताएगा? क्लॉक बताएगा। तो क्लॉक से जो पल्सेस आएंगी उनको ये टाइमर के तौर पे यूज करेगा और उन पल्सेस को काउंट करेगा और उस पल्स के बाद ये उतना टाइम लैप्स या जो भी काम करना है टाइमर के अकॉर्डिंग वो पल्स जनरेट करेगा या सिग्नल जनरेट करेगा या सिग्नल को हटाएगा, जो भी काम करना वो करेगा। तो अगर एक्सटर्नल पल्सेस को काउंट कर रहा है तो वो काउंटर हो की तरह काम कर रहा है। अगर वो इंटरनल पल्सेस को काउंट कर रहा है, क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा है, तो वो टाइमर की तरह काम कर रहा है, राइट। अच्छा, ये जो टाइमर काउंटर है दोनों के दोनों, दिस टाइमर एंड काउंटर्स, बोथ द टाइमर काउंटर T0 and T1, they are controlled by two registers which are known as T mode and T cone. T mode and T cone are the two registers which will set the mode of the counter timer as well as control the mode and timer counter. तो एक तरीके से ये कहिए ये दो रजिस्टर्स जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय अनदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर T mode that is timer mode and T cone that is timer control. So all the pulses timer counter operations they are controlled by this. The T mode register, now we will discuss the T mode register. The T mode register, it is an 8-bit register which is used to as the mode register of the timer. 8 बिट का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर की D0 से लेकर D7 बिट है। This D0 to D7 bit is, ये बिट कहलाती है हमारी गेट बिट, गेट, एंड दैट इज गेट ऑफ टाइमर काउंटर 1। इनफैक्ट ये जो 4 है बिट ये टाइमर 1 के लिए है और ये 4 जो है ये टाइमर 0 के लिए है, ठीक है, बांट दिया। दिस बिट इज नोन एज C/T bar and that is for timer 1, and this is known as these two, in fact these two they are known as T1M1 and T1M0, and same is here, that is this bit is known as gate 0, this is known as C/T bar 0, and these two are known as T1M0, T1 and not M0, T1M1 and TM-M0, right? So these are the 8 bits of the timer mode register. दिस टाइमर मोड रजिस्टर 8 बिट जो है वो दो अलग अलग पार्ट में बांटी जा सकती है। अपर 4 बिट वो टाइमर 1 के लिए डेडिकेटेड है, लोअर वो टाइमर 0 के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करें हम T1M1 और T1M0 या
सॉरी ये T1 नहीं, ये T0, राइट। बेसिकली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये दो है, ये M1 और M0 बिट है, M1 and M0 bit है, and these two bits they are used to select the mode of the timer counter. They are used to select the mode of the timer counter. ठीक है, टाइमर काउंटर का मोड सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज होगा। इनके 4 कॉम्बिनेशन है, 00, 01, 10 एंड 11। ठीक, एक कॉम्बिनेशन एक मोड को डिनोट करता है। यू कैन गिव द नेम एज मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। ये मोड क्या है? राइट, ये मोड क्या है? मोड 0 is, you can say, is a 13-bit counter mode. That means एक तरीके से 13 बिट का काउंटिंग की जाएगी। 13 बिट तक का काउंटर बन सकता है। इट विल बी ए 13 बिट काउंटर, अप टू 13 बिट का काउंटर हम इसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो 16 बिट होती है। किसी भी इसमें जो T1 की बात करें, TH1 और TL1 जो कि 8 बिट के दो थे, विच कैन बी कंसिडर्ड एज T1 टाइमर काउंटर 16 बिट का ये होता है। तो ये 13 बिट के तौर पर काम कैसे करेगा? तो पहला मोड है जिसमें कि 13 बिट के काउंटर मोड की तरह काम करेगा। इसमें 5 बिट का प्री स्केलर होता, क्या होता भी बात करते हैं। दूसरा है मोड 1। मोड 1 16 बिट टाइमर की तरह काम करेगा, 16 बिट टाइमर या काउंटर की तरह काम करेगा, राइट। मोड 2 जो है ये 8 बिट ऑटो लोड काम करेगा, ऑटो लोड काम करेगा, राइट। एंड मोड 3 जो है उसमें T0 जो है वो 8 बिट के दो इंडिपेंडेंट T0, सिर्फ T0 इंडिपेंडेंट टाइमर काउंटर की तरह काम करेंगे। सो दे आर 4 मोड। पहला मोड जो कि जीरो कहलाया, ये एक 13 बिट के काउंटर की तरह यूज होगा। दो दिस मोड इज रेयरली यूज। जो प्रीवियस इसके वो थे उनके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए इस मोड को बनाया गया था। ठीक है, सो इट इज ए 13 बिट टाइमर काउंटर मोड। इस मोड में क्या होता है? मोड जीरो में क्या होता है? ये जो दो रजिस्टर्स हैं 8 बिट की, मान लीजिए T0 TL0 है, ये TL1 है, TH0। तो इसमें इसके अंदर कोई 8 बिट की काउंट हम भरेंगे, कोई भी काउंट भर सकते हैं। 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट की काउंट होगी। और इसमें जो 5 बिट है इसकी D0 से लेकर के D7 तक की ये जो है, इसमें 0 1 2 3 4 ये जो 5 बिट है इसमें कोई भी वैल्यू हम भर देंगे। तो एक तरीके से 8 बिट ये और 5 बिट ये 13 बिट की तरह काम करेगा। ये जो रजिस्टर है ये इसके अंदर मान लीजिए मैंने 10 काउंट भर दी। दो भरने को तो मैं 32 इसमें भर सकता हूं, ऑल आर 1 1 1 1, सॉरी ये 32 भर दी, राइट। ये 32 भर दी तो ये 32 एक एक करके घटेगी, घटते घटते जिस टाइम 0 हो जाएगी, रोल ओवर 0 से फिर वापस 1 आएगा, तो ये एक काउंट चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये एक काउंट चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये एक काउंट चलेगा। दैट मीन्स ये 32 स्टेप चलेगा है, तब ये एक बार है। सो वट एवर काउंट इज हियर, x count is here, that means this register will count 32x काउंटर हो जाएगा ये। सो ये x ये जो है प्री स्केल किया हुआ है। सो इसको हम 8 बिट काउंटर विद 5 बिट प्री स्केल के तौर पर भी हम इसको कह सकते हैं। 16 बिट का जो टाइमर काउंटर है
ये एक नॉर्मल 16 बिट का टाइमर काउंटर की तरह यूज होगा। 8 बिट का जो काउंटर है, राइट, जो 8 बिट काउंटर है मोड 2 जो है वो इसमें ये 8 बिट के काउंटर की तरह यूज होगा और ये सिर्फ टाइमर 1 यूज होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइमर 1 यूज होगा और टाइमर 1 की जो दो रजिस्टर है TL1 एंड TH1, जो भी काउंट 8 बिट की जो काउंट होगी ये ऑटो लोड में काम करेगा। जो भी काउंट इसके अंदर होगी वो काउंट, मान लीजिए हमने टाइमर 1 के अंदर कोई काउंट लोड करा दी, मान लीजिए 35, दैट मीन 35 टाइम्स इसने काउंट करना था, तो ये हमने कराई थी TL1 में। इसी काउंट की दूसरी कॉपी हम रख देंगे TH1 में, दैट मीन्स 35 ही TH1 में भी 35 लोड हो जाए। दैट मीन्स TL1 हमारा 8 बिट के काउंटर की तरह यूज होगा, उसकी काउंट की एक कॉपी TH1 में हम रख देंगे और TL1 जो है ये काउंटिंग करेगा और जब ये काउंटिंग करते करते 0 हो जाएगा तो 0 से फिर 1 जाएगा या मैक्सिमम जाएगा, फिर वहां से रोल बैक होगा। दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज ए रोल बैक, ऑल 0 टू ऑल 1 और 1 टू ऑल 0, तो उस टाइम ये जो TH1 की वैल्यू है ये वापस उसके अंदर लोड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए TL1 में हुआ 35, 34, 33, कम होते गए व्हेन इट बिकम्स 0, राइट। 0 से फिर जैसे ये 0 हुआ, 0 होते ही ये रोल ओवर हुआ, सारे 1 होंगे, 1 होते ही ये जो TH1 के अंदर जो काउंट थी, ये TH1 के अंदर जो काउंट ये वापस इसमें चली जाएगी एंड दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो बेसिकली इज 8 बिट ऑटो लोड मोड। इन दिस 8 बिट ऑटो लोड मोड में क्या होगा, TL1 के अंदर हमारी काउंट होगी, TH1 के अंदर हमारा उसका कॉपी होगी। जब TL1 घटते घटते 0 हो जाएगा तो ये वापस उस काउंट में लोड करा देंगे। सो इट इज 8 बिट ऑटो लोड मोड। देन कम्स मोड 3। मोड 3 जो है सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट 8 बिट के काउंटर की तरह यूज होगा। मोड 3 can be used in mode 3, the timer counter can be used 2 independent 8 bit timer counters that, और उसमें सिर्फ और सिर्फ T0 जो रजिस्टर है, T0 जो टाइमर काउंटर है, सिर्फ वो यूज होगा और इस T0 के TH0 एज वेल एज TL0, ये दोनों के दोनों हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए 2 इंडिपेंडेंट काउंटर्स। इसमें T1 जो टाइमर है हमारा वो यूज नहीं होता है, राइट। T1 टाइमर यूज नहीं होता। सो दीज आर द 4 टाइमर मोड्स। मोड 0 13 बिट का काउंटर मोड, मोड 1 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, इसका ये सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि ये 13 बिट का, ये 16 बिट का। ये 8 बिट का ऑटो लोड मोड है जो कि सिर्फ T1 टाइमर के अंदर यूज होता है। ये हमारा 2 8 बिट के इंडिपेंडेंट टाइमर यूज कर सकते हैं और वो सिर्फ T0 के ही हम कर सकते हैं, बाकी के नहीं करेंगे। नेक्स्ट मोड बिट के अलावा ये जो मोड बिट थी जो कि क्या काम आ रही थी हमारी, दीज 2 मोड बिट्स दे आर यूज टू सेलेक्ट द 1 आउट ऑफ द 4 मोड्स। इसके अलावा यहां पर हमारी ये बिट है, इधर ये और इधर ये, अच्छा गेट बिट है, गेट। दिस गेट बिट इज यूज टू अनेबल और डिसेबल द रिस्पेक्टिव काउंटर्स। The gate bit is used to enable the internal mode of a counter. टाइमर काउंटर जो है गेट एक तरह, जैसे उसमें भी 8254 भी अगर हम याद करें, वहां पर भी गेट जो है डिफरेंट मोड में यूज क्या होता है, उनको काउंट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा था, काउंटर्स को अनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज हो रहा था। तो यहाँ पर भी गेट जो है, जो ये हमारे टाइमर्स हैं, चाहे वो T1 हो चाहे वो T0 हो, उनको कंट्रोल करने के लिए, अनेबल या डिसेबल उनकी काउंटिंग को करने के लिए ये गेट यूज हो रहा है। सो अगर गेट 1 है
गेट बिट 1 है, चाहे वो गेट 1 के लिए हो, चाहे गेट 0 हो या गेट 1 हो, इफ दैट बिट इज 1, इसका मतलब वो रिस्पेक्टिव काउंटर जो है वो अनेबल होगा। अगर 0 है तो वो डिसेबल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट इज C/T बार, बेसिकली इट इज काउंटर/टाइमर। अगर ये बिट 1 है, इसका मतलब रेस्पेक्टिव टाइमर जो है वो काउंटर की तरह यूज हो रहा है। अगर ये बिट 0 है, इसका मतलब वो टाइमर की तरह यूज हो रहा है। सो 1 फॉर काउंटर, 0 फॉर टाइमर, राइट। सो ये टी मोड रजिस्टर हुआ। तो इनफैक्ट आप इन शॉर्ट क्या कहोगे, टी मोड रजिस्टर इन दोनों काउंटर्स को के मोड को सेट करने के लिए यूज होता है, और काउंट वैल्यू को काउंटर की तरह यूज हो रहा है या टाइमर की तरह यूज हो रहा है, ये बात डिसाइड करने के लिए यूज होता है। और साथ में यूज होता है वो उनको टाइमर को अनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज होता है। अनेबल डिसेबल तो हो गया। अब दूसरा जो टाइमर है, इसको काउंटर को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, एंड दैट कंट्रोलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ TCON register. TCON, which is also again an 8-bit register. The various bit of it is the 8-bit. इन 8 बिट में से 4 बिट तो टाइमर काउंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। माइंडेड इस बात का ध्यान रखना कि ये TCON जो है सिर्फ और सिर्फ काउंटर के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये इसकी 4 बिट जो है वो हमारे टाइमर काउंटर ऑपरेशन के लिए यूज हो रही है, और 4 बिट जो है वो हमारे इंटरप्ट्स के रिलेशन में यूज हो रही है। ठीक है, 4 बिट टाइमर काउंटर को कंट्रोल करने के लिए, 4 बिट एक्सटर्नल जो इंटरप्ट है हमारा कहां से आ रहा है, INT0 एंड INT1 कहां पर आ रहा है, पोर्ट P3 की कौन सी बिट, 4 और 5 पिन पे आता है जो, ठीक है। सो दैट इज दैट वन। ये कौन कौन सी है, इट इज TF1, TR1, TF0, TR0, राइट, IE1, IE1, IT1, IE0, IT0। ये जो 4 है ये इंटरप्ट के लिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज होती है, एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए यूज होती है। स्पेशली ये दो INT1 और ये दो INT0। ये INT1 और INT0 कहां पर होती है, ये पोर्ट 3 की P3.4 एंड ये P3.5 और ये 4 पिन पे जो एक्सटर्नल टाइमर इंटरप्ट है INT0, INT1 उसके लिए। अब यहां पर बात करें TF1 और TF0, ठीक है। TF इज टाइमर ओवरफ्लो, ठीक है, एंड TR इज टाइमर रन कंट्रोल। ये दो सिग्नल है, कंट्रोल पिन जो है, बिट्स जो है, दे आर फॉर टाइमर, राइट। TF1 इज फॉर टाइमर 1, TF0 इज फॉर टाइमर 0, TR1 is for timer 1, TR0 is for timer 0. Timer overflow, the same meaning, timer overflow, that means एक तरीके से जब कभी भी टाइमर रोल होता है, राइट, ऑल 0 से टाइमर है
वाले काउंटर है, ये बढ़ते 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 इट स्टार्ट फ्रॉम 0 0 टू इट गोज टू अप टू, जब ये FF तक हो जाएगा तो ये वापस रोल ओवर होगा, वापस 0 0 पाएगा। तो उस टाइम जब कोई भी टाइमर 1 के लिए या टाइमर 0 के लिए, कोई सा भी टाइमर जब ये ओवरफ्लो होगा, दैट मीन्स रन ओवर होगा, तो उस टाइम ये TF रेस्पेक्टिव TF बिट 1 सेट हो जाएगी। सो whenever there is a rollover of a particular timer counter register from all ones to all zeros, at that time it will become 1. So एक तरह से फ्लैग की तरह काम करा, टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग की तरह इसने काम किया है, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक फ्लैग बिट, कि जैसे ही वो ओवरफ्लो हुआ ये फ्लैग बिट 1 हो गई, राइट। टाइमर रन कंट्रोल, जैसा कि नाम है रन कंट्रोल, कोई भी टाइमर जब रन कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि कब रन होगा कब नहीं होगा। व्हेन इट इज 1 टाइमर स्टार्ट्स, व्हेन इट इज 0 टाइमर स्टॉप्स, हॉल्ट हो जाएगा। सो इट विल कंट्रोल द टाइमर ऑपरेशन, जब वो 1 मतलब स्टार्ट होगा या वो हॉल्ट होगा। सो टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग कह सकते हो आप, ठीक है। टाइमर रन कंट्रोल बिट। अब बाकी बच गया इनकी, दे आर रिलेटेड टू INT1 एंड INT0। ओ सॉरी, ये 3 4 5 5 और 4 नहीं होती भाई, ये होता है, अच्छा चलो INT, चलिए एनीवे। अब IE, दिस IE is equal to external interrupt, external interrupt, right। so ये external interrupt flag को enable या disable करेगा। this bit is used to enable or disrupt the external interrupt. it is something like interrupt enable, right। and TX is used, this TX means IT, this IT is used to make the, it is used, this IT is used to make the external interrupt as triggered or as level triggered। as we know, interrupts, hardware interrupts, they can be as triggered, they can be level triggered। सो यहाँ पर 8051 में जो इसके 2 इंटरप्ट है, INT0 और INT1, जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट है, उन इंटरप्ट को हम अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, उन इंटरप्ट को हम एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड कर सकते हैं, राइट। एज ट्रिगर्ड होगा या लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड होगा तो वो हमेशा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा, ये बात याद रखना। और अगर लेवल ट्रिगर्ड होगा तो वो लो लेवल triggered होगा। that means that will be enabled during this time of the pulse, during this time of the pulse, and disabled during this time and this time of the pulse। so it will be either as triggered or level triggered, right। if this IT is 1, if IT is equal to 1 तो ये as triggered होगा, if IT is equal to 0 then ये level triggered होगा and low level triggered होगा। और ये उसको एक्सटर्नल, आप इसको IE को पढ़ सकते हो इंटरप्ट अनेबल। जो एक्सटर्नल इंटरप्ट आ रहे हैं INT0 एंड INT1, दे विल बी अनेबल्ड और दे विल बी डिसेबल्ड, राइट। सो इट इज योर
T control, T-con register of how this overall controlling is done. Let's see, draw a diagram for this. टाइमर कंट्रोल सर्किट क्या होगा, किस तरीके से कंट्रोल करता है, क्या कुछ कंट्रोल होता है. जैसे मैं टाइमर 0 की बात करूं, मोड 0 की अगर हम बात करें, सिमिलरली दे कैन बी, यू कैन से टाइमर काउंटर कंट्रोल सर्किट. क्या होता है हम ड्रॉ करके देखते हैं. ये हमारा ऑसिलेटर है. दिस ऑसिलेटर इज डिवाइडेड बाई 12. 12 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, 1 मेगाहर्ट्ज पर लेके आ गया. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया. ये हमारी की होगी, राइट. This key is controlled. This key is controlled by this TX pin. TX pin. TX is nothing but timer 1 और timer 0 pin of हमारा P3 पोर्ट की जो पिन है वो पिन है. टाइमर पिन जिसको हम कहते हैं, ये वो है, राइट. C/T bar is equal to 0. C/T bar is equal to 1, राइट. ये एक तरीके से इसका रन कंट्रोल है, कंट्रोल स्विच. Right, this control switch is controlled by a circuitry. This circuit out, this is your AND gate. This is your AND gate. इस AND gate में एक इनपुट तो हमारा है. This one input is TRX. दूसरा इनपुट आ रहा है एक और गेट से. दिस इज द OR गेट, राइट. इस OR गेट में एक तो हमारा है गेट और दूसरा हमारा है INT, राइट. यहां से ये हमारा THX, TLX और ये हमारी बिट हो गई कौन सी, TFX. TFX. So this is a control circuitry for our operation. दो मोड है, टाइमर की तरह या काउंटर की तरह. ऑब्वियस है, अगर वो इंटरनल पल्सेस को काउंट कर रहा है तो वो टाइमर हुआ. अगर वो एक्सटर्नल पल्सेस को काउंट कर रहा है, दैट मीन्स द पल्स विच आर कमिंग एट द T इनपुट ऑफ द पोर्ट 3 बिट. पोर्ट 3 की जो पिन है वहां पर अगर वो आ रही है तो ये उनको काउंट करेगा. उनको काउंट करेगा, देन इट विल बी द एक्सटर्नल पिन को काउंट कर रहा है तो ये काउंटर की तरह काम करेगा. ठीक है, अब ये टाइमर कर रहा है या काउंटर कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सर्किट. इस सर्किट में अगर आप देखें तो फिर वो जो हमारे पास 4 पिन थी, दैट इज TF एंड TR. TR ये है, TF ये है. ठीक है, दिस TF क्या था, दिस TF इज टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग. सो ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग को बता रहा है. एंड TR इज टाइमर रन कंट्रोल, टाइमर को रनिंग को कंट्रोल करेगा.
अच्छा, अगर ये 1 है, यहां पर हमारा ये इसको कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर 0 एंड ये 1, 0 फॉर ओपन एंड 1 फॉर क्लोज, राइट। क्लोज होगा तो टाइमर काम करेगा, चाहिए टाइमर या काउंटर काम करेगा। सो यहां पर हमारा 1 आना चाहिए। अब ये 1 कब आएगा? 1 आएगा कि भाई इसको तो कंपल्सरीली 1 रहना ही रहना चाहिए। अगर TRX मतलब रन कंट्रोल बिट जो है टीकॉन की, वो तो 1 होनी ही होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो ये 0 आ जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। तो इसका तो 1 होना कंपल्सरी है। इन दोनों में से या तो दोनों हो या कम से कम एक 1 होना चाहिए। अगर गेट 1 है, इफ गेट इज 1, तो भाई INT को, दैट मीन्स इंटरप्ट वाले को, उसको 1 होना ही होना चाहिए। गेट 1 है तो ये 0 और ये 1 होना ही होना चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। सो टाइमर काउंटर को चालू रखने के लिए हमें क्या कंडीशन होगी? TRX मस्ट बी 1, गेट 0 एंड INT मस्ट बी 1, या और TRX मस्ट बी 1, गेट is 0, it may be 0, राइट। सो दो कंडीशन है, दोनों में TRX 1 होना कंपल्सरी है। इन दोनों से में कोई एक 1 होगा, कोई एक 1 होगा तो भी ये रन करेगा। सो दिस इज मोड 0 के लिए भी यही है, मोड 0 और मोड 1 के लिए भी यही है, चाहे 13 बिट का हो टाइम। जब हमारा रजिस्टर काउंटिंग पूरी हो जाए, टाइमर या काउंटर जो भी है, तो ओवरफ्लो, इसका ओवरफ्लो फ्लैग बिट सेट हो जाएगी एंड दैट कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर सर्टेन ऑपरेशन। ये जो आउटपुट, ये जो पिन है, इसका हम यूज करेंगे एज ए फ्लैग बिट और उसके बेसिस पे हम डिसीजन अपना लेंगे। और जिस पर्टिकुलर काम के लिए ये टाइमर काउंटर हमने बनाया है, राइट। मोड 2 में क्या होगा? मोड 2 एक तरीके से क्या होगा? मोड 2 में आप कह सकते हो ये TL1 होगा और ये हमारा दैट इज ये TH1 होगा और ये TF है हमारा। तो जैसे ही ये ओवरफ्लो होगा, ये ओवरफ्लो होगा, रन ओवर होगा, तो ये TH की वैल्यू वापस TL में आ जाएगी और फिर ये ऑटो लोड की तरह काम करेगा। सेम इज विद द मोड 3, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइमर काउंटर ऑफ 8051। इट्स कंसर्न रजिस्टर्स, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कौन कौन से हुए? T1 एंड T0, 2 रजिस्टर 16-16 बिट के, जो कि 8-8 बिट के 2 रजिस्टर के तौर पर कंसिडर किए जा सकते हैं। सो 8 बिट के 2 रजिस्टर, इसके 2 रजिस्टर 8-8 बिट के, टोटल मिलाकर 4 रजिस्टर हुए हो गए और 2 रजिस्टर इसको मोड के लिए और कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, दैट इज T मोड एंड T कंट्रोल रजिस्टर, राइट। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।